नमस्ते भारत, बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज चलते हैं बाम्बू ग्रोवर में एक नए मित्र के साथ में, जिन्होंने अपने जीवन का 8-10 साल स्पेशली कई अलग-अलग चीज़ों के अंदर में बिताया है और आज बाम्बू को समझने और सीखने के लिए हमारे साथ में आए हैं। नमस्ते, તમને ગુજરાતી ફાવશે કે હિન્દી? ગુજરાતી. બરાબર છે, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ગુજરાતીમાં બોલજો, હું પછી એવું હશે તો રિપીટ કરી દઈશ એટલે દરેક વ્યક્તિને થાય. તમે ક્યાંથી આવેલા છો, શું તમારું નામ અને તમે અત્યાર સુધી ખેતીમાં શું કરેલું છે? મારું નામ છે ધીરુભાઈ, જી, ગામ છે વાંગત્રા, તાલુકો વિછિયા, બરાબર, જિલ્લો રાજકોટ. જી, મેં 9 વર્ષ પહેલા ચંદન વાવેલા છે બરાબર, અને હવે મારે એને ફરતી બોર્ડર માટે બાંબુ વાવવા છે, એના લીધે હું અહીં આવ્યો છું. બરાબર છે. તો તમારે ચંદનના પ્રોટેક્શન માટે થઈને, એટલે ચંદન જે છે એ કોઈ તોડી ન નાખે, ચોરી ન થઈ જાય, એના રિલેટેડ તો તમે ફેન્સિંગ તાર પણ કરી શકતા હતા, તમે બાંબુને જ કેમ પસંદ કરેલો છે? ફેન્સિંગ તાર તૂટી જાય અથવા સિમેન્ટનો પોલ આવે એટલે ઈ ભાંગી જાય. બરાબર છે. અને લાઇટનો શોર્ટ હોય તો એ પણ આ બાંબુ જેટલું સક્ષય નથી. બરાબર છે. બાંબુની વાડની ઊંચાઈ વધારે હોય છે જી, અને લાંબો સમય હાલે છે. બરાબર છે. અને તમે જે આ ચંદન વાવેલા છે તો ક્યાં સફેદ છે, લાલ ચંદન, ક્યાં ચંદન વાવેલા છે? મારે ચંદન છે સફેદ, બરાબર, અને વાવ્યા એને 9 વર્ષ થયા છે. બરાબર છે. અને એની અંદર મેં દુધિયા લીમડા વાવ્યા છે. બરાબર છે, લુમિયા, બરાબર છે, મલેશિયન લીમડા જે કી, મલેશિયન લીમડા. જી. અને હવે એની અંદર જે મારે ખાલા છે 500 જેવા, એમાં મારે આ બાંબુ વાવવાના છે. બરાબર છે. એક તો તમારે બાઉન્ડ્રી કરવાની છે ને વચ્ચે 500 રોપા જે તમારા ખાલા છે એની અંદરમાં વાવવા છે. તો ટૂંકમાં જો કોઈ આપણે ચંદનના ખેડૂતો હોય એને કઈ સલાહ દેવી હોય તો તમારા તરફથી શું એવી વસ્તુ તમે આ 9 વર્ષની અંદરમાં શીખા જાણ્યા કે જે ટૂંકમાં એને સમજાવી શકાય? શીખવા જાણવામાં તો એક તો એની પાસે ચંદનની બાજુમાં બીજો છોડ વાવવો જોઈએ. બરાબર છે, પરોપજીવી છે એટલે બીજું કંઈક વાવવું જોઈએ. બરાબર છે. અને નજીકથી હાથી હકાય નહીં અને એને જલ્દી કટિંગ કરાય નહીં. બરાબર છે. જેટલું કટિંગ વધારે કરો એટલો વિકાસ ઓછો થાય. અચ્છા, સાઈડ બ્રાન્ચની જે હોરતા હોય આપણે જેને કહીએ, એ સાઈડ બ્રાન્ચને હોરવાની નહીં. બરાબર છે. એમ થડિયું જે છે એ મોટું ને જાડું થાય. બરાબર છે. અને તમે ખાતર પાણી પણ એમાં કઈ આપો છો કે કેવી રીતે કરો છો? ખાતર પાણી હું કઈ અત્યારે આપતો નથી, ખાલી પાણી આપું છું. બરાબર છે. એના વિકાસ માટે ખાલી આ એનો જે પાંદડા અને કચરો પડે એ જ છે. બરાબર છે. એક લુમિયા વાવ્યા, એની સાથે તમે બીજું પણ કઈ ફળફળાદી પણ વાવેલું છે કે? જામફળી વાવેલી છે. અચ્છા, જામફળી વાવેલી છે. તો ઓમ તમારા અનુભવે જામફળી વાવ્યા પછી તમને વિકાસમાં કઈ ફેર દેખાણો કે લુમિયા વાવ્યા પછી વિકાસમાં ફેર દેખાણો? જામફળી વાવ્યા પછી. બરાબર, એટલે મારે સમજી લ્યો કે હું નવો ખેડૂત હોય અને એમને વાવેતર કરવું હોય તો લુમિયા વાવીએ કે જામફળી વાવીએ તો વધારે ફાયદાકારક? ના, એ લુમિયા નહીં વાવવાના. બરાબર છે, ઓકે. એ સિવાય બીજું આપણે દેશી લીમડો છે અથવા બાવળ છે, સરુ છે, એ વાવવા, એ મારે નથી વાવવાનું, એ મારી ભૂલ છે. સમજાઈ ગયું. આપણે લુમિયા વાવ્યા પણ લુમિયાની જગ્યાએ જે એને વધારે એમાંથી વિકાસ કરાવવા માટે મદદ કરે એવી વસ્તુ વાવી હોય તો એ વધારે સારું રહે. બરાબર છે, ઓકે. અને તમારું શું નામ છે? સંજયભાઈ, ગામ વાંગત્રા, જી, તાલુકો વિછિયા, જિલ્લો રાજકોટ. બરાબર. તો તમારે પણ જે છે વાંસ વાવવાની ગણતરી છે? હા, છે વાંસ વાવવા. બરાબર છે. તો તમારી પાસે જમીન પાણી ને એ કેવી રીતે છે? પાણી જ નથી. બરાબર, પાણી થાય એવી કોઈ વેરાયટી વાવવાની ગણતરી છે તમારે? બરાબર છે. તો જે પણ વસ્તુ તમે કીધી છે એને જ હું એકવાર હિન્દીમાં થોડુંક રિપીટ કરી દઉં જેથી કરીને બીજા વ્યક્તિઓને પણ આ ખ્યાलમાં આવે. हमारे साथ में आज 2 फार्मर आए हुए हैं जो पास के 250-300 किलोमीटर के रेडियस से है और उन लोगों ने सफेद चंदन की खेती की हुई है और सफेद चंदन के अंदर में उन लोगों को बाउंड्री के लिए सिक्योरिटी चाहिए. 9 साल के पुराने चंदन है, अभी 10 साल के बाद उसका कटिंग आएगा तो वो बाउंड्री एक परफेक्टली रहे. वो दूसरी चीज, बीच में कुछ प्लांट जो है वो मर चुके हैं तो उसकी जगह पर कौन सा बांस वहां पर लगाया जाए. एक मित्र का ये था और दूसरे मित्र आए हैं जिनके पास में पानी की सुविधा थोड़ी सी कम है, गर्मियों के सीजन में 4 महीना कम पानी रहता है
तो कम पानी वाली कौन सी वेराइटी लगाए, ये दो चीजें थी। और साथ में जो चंदन प्लांटेशन किया है 9 साल के अंदर में, उनका जो तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे के हिसाब से अगर चंदन के साथ में इन्होंने गलती की थी कि लुमिया डुमिया बीच में डाला था, जिसको मलेशियन नीम कहते हैं, तो वो ना डाल के वहां पर कुछ फ्रूट फार्मिंग किया हुआ हो, जैसे उन्होंने जामफली लगाई हुई थी, या तो वहां पर सरू लगाया जाए या दूसरी ऐसी चीज लगाई जाए जो चंदन के साथ में मिक्स में चलती हो और उसको बढ़ोतरी में मदद करे। तो ये तो था सिर्फ टिप्स फार्मिंग का कि किस तरीके से चंदन को बढ़ाया जाए। अब आते हैं हम बाम्बू के अंदर में। तो बाम्बू के अंदर में जो बाउंड्री वॉल के अंदर में इनको लगाना है, तो जो हम पिछले 1-1.5 घंटे से इनके साथ बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने अपनी बाउंड्री से इनसाइड पे 5 फुट जगह छोड़ी हुई है और उसके बाद चंदन लगाया हुआ था। और 10 बाई शायद 12 में आपने चंदन लगाया था ना, 12 बाई 10 में। आम 12 और आम 10। हाँ, 12 बाई 12 और 10 बाई 10। 12 बाई 10 का जो है वो चंदन लगा है। तो जो 10 का पल्लू बाकी रहता है उनका, उसके अंदर में बीच में हम 3 प्लांट जो है वो डीएस वैरायटी के, जो हाइट में कम है, कम पानी में हो सकता है, और नोट इंटरनोट जो है उसका छोटा होने के कारण साइड ब्रांचेस जो है उसमें ज्यादा आती है, ताकि उनका बाउंड्री फेंसिंग का काम जो है वो पूरा हो सके। तो बाउंड्री में हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं डीएस वैरायटी। और बीच के अंदर में जो लगाना है उसके अंदर में हम 30 फीट की हाइट वाला, क्योंकि चंदन की अभी उनकी 9 साल हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट नहीं बड़े होने के कारण चंदन अभी कितना हाइट नु थियो से चंदन 10 થી 15 10 से 15 फीट की हाइट बड़ी है चंदन की 9 साल के अंदर में। हम उनको बड़ी हाइट वाली वैरायटी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। छोटी हाइट में मनगा करके वैरायटी है, डी स्टॉक्सी, वो वैरायटी सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो खुला डुला भी रहे। बीच में से अगर उनको चौथे साल के बाद कटिंग करना हो तो भी हो सके। यदि चंदन 10 साल के बाद कटिंग कर रहे हैं, तो तब भी अगर कटिंग करना हो तो भी उनको दिक्कत ना आए, उसके लिए मनगा वैरायटी बीच में लगा रहे हैं। और डीएस वैरायटी जो है वो बाउंड्री पे लगा रहे हैं। सिर्फ बाउंड्री का काम सिक्योरिटी का नहीं रहेगा, साथ साथ में वो चौथे साल के बाद में उसमें से कटिंग करके पोल निकाल भी पाएंगे। बाउंड्री तब भी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हम जो बाउंड्री में लगा रहे हैं वो 2.5 फीट के अंतर पे लगा रहे हैं, और अपनी बाउंड्री से अंदर की तरफ में 5 फीट जगह छोड़ के लगा रहे हैं। तो इस तरीके से बाउंड्री भी सिक्योर हुई और अंदर भी हमने प्लांट को लगा दिया। और दूसरे जो ब्रदर है जिनको चाहिए कम वैरायटी, जिसमें पानी कम लगे, वैसी वैरायटी, तो टोटल 3 से 4 तरह की अलग अलग वैरायटी है, जिसमें कम पानी से भी शुरुआती तौर पे 3 साल के अंदर में विदाउट मोर्टालिटी या कम मोर्टालिटी में बांस पनप सकता है। जिसमें से एक वैरायटी है डीएस, डेंड्रोकेलिमस टेक्टस करके वैरायटी है, वो लग सकती है, जो बाउंड्री में और बीच में दोनों जगह पे चलेगी। उसके बाद में एक वैरायटी आएगी न्यूटन करके, जो भी कम पानी में या तो थोड़ा सा सोल्टेड पानी है, खारा पानी है, तो उसके अंदर में भी वो चलने के लिए तैयार रहेगी। एक वैरायटी है जो रफ एंड टफ के अंदर में और है, वो है ग्रीन वल्गेरियस वैरायटी, वो भी लगा सकते हैं। और चौथी वैरायटी है, बकायदा वो वैरायटी फॉरेस्ट के लिए है, कटंग करके वैरायटी है, वो फॉरेस्ट डिवीजन के लिए है, लगा सकते हो यदि आपको उसको बेच के फिर कमाने की बहुत ज्यादा सहूलियत नहीं है तो। पहली वैरायटी डीएस रहेगी जो चौथे साल में कटिंग में आएगी, न्यूटन रहेगी जो चौथे साल में कटिंग में आएगी, ग्रीन वल्गेरियस और कटंग वैरायटी जो है उसमें से ग्रीन वल्गेरियस 5.5 साल पे कटिंग पे आएगी, और जो कटंग वैरायटी है वो 7वें साल पे कटिंग में आती है। तो इस तरीके से कम पानी में या थोड़ा सा सोल्टेड वाला पानी के अंदर में हम ये 4 से 5 प्रकार की वैरायटी लगा सकते हैं और आगे अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए, और किस तरीके से बांस की खेती आपके कस्टमाइज तरीके से, आपके पास पॉकेट मनी क्या है, कितना बजट में काम करना चाहते हैं, कितने साल के बाद उसमें से उत्पादन लेना चाहते हैं, गर्मी ठंडी क्या है, बीच में आपने कुछ लगाया है नहीं लगाया, वो हमारे साथ शेयर करिए। और आपके यहाँ पर भी अगर बांस लगाना है तो कोई ना कोई तरीके से, सिर्फ बाउंड्री में भी कम खर्चे पे बढ़िया सहूलियत से 5 साल के बाद विदाउट मेंटेनेंस इनकम जनरेट कर सकते हैं बांस की बाउंड्री करके। तो आइए मिलके बांस की बाउंड्री करते हैं। थैंक यू।